I stopped 8 wars. I even stopped India and Pakistan. They had 9 planes already shot down. They were in a war. I stopped them. I said, if you keep fighting, I'm going to put a 250% tariff on each one. Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 30 to 50 million people. امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ میامی میں تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا، میں نے پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان بھارت جنگ میں 1 ہفتے میں 9 جہاز گرائے گئے۔ پاکستان اور بھارت کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، صرف میں نے روکا۔ میں نے کہا جنگ جاری رہی تو 250% ٹیرف لگاؤں گا۔ بولے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیت ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے 30 سے 50 ملین افراد کی جان بچائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میں نے ایٹمی جنگ ہونے سے روکی۔ 8 جنگیں روکنے کے باوجود کہا گیا امریکی صدر نوبیل انعام کا حقدار نہیں۔ They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. امریکی صدر نے اسٹریٹ آف ہارمز کو اسٹریٹ آف ٹرمپ کہہ دیا۔ کہا فیک نیوز کہے گا میں نے غلطی سے اسٹریٹ آف ٹرمپ کہہ دیا۔ ایران میں رجیم چینج کا دعویٰ بھی کیا۔ کہا میرے خیال سے رجیم چینج ہو گیا۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر سے متعلق کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مذاکرات ہوں گے لیکن آبنائے ہرمز کو کھولنا پڑے گا۔ ایران کی نیوکلیئر بلیک میلنگ ختم کر دی۔ ایرانی جارحیت سے مشرق وسطیٰ کو آزاد کر دیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں آج رات خطرہ بھی دور ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز بند ہے، کوئی جہاز نہیں گزر رہا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر کے بیانات غلط قرار دے دیے۔ کہا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج مختلف ملکوں کے 3 جہازوں کو روکا گیا۔ اسرائیل اور امریکی اتحادیوں حامیوں کو آبنائے ہرمز سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور UN سیکرٹری جنرل کے درمیان رابطہ۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے جہاز روکنا بطور ساحلی ریاست قانونی حق ہے۔ آبنائے ہرمز پر عدم استحکام امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی یقینی بنانے کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، ضروری اقدامات کر چکے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری۔ عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ $5.5 فی بیرل مہنگا ہو گیا۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $114 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI کروڈ $6 اضافے سے $101 فی بیرل کا ہو گیا۔ بحران کے باوجود وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں بتایا پیٹرول $95، ڈیزل $203 فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی لیکن سمری مسترد کر دی۔ حکومت مزید $56 ارب کا اضافی بوجھ خود برداشت کرے گی۔ ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب کی کٹوتی اور کفایت شعاری سے اربوں روپے بچائے۔ حکومت نے محدود وسائل کے باوجود پہلے سے تیاری کے سبب مہنگائی کا طوفان روک رکھا ہے۔ آئندہ دنوں میں بچت منصوبے کا اعلان بھی کریں گے۔ عوام حکومت کا بھرپور ساتھ دے، غیر ضروری سفر سے گریز کرے۔ قوم کے باہمی اتحاد اور تعاون سے مشکل حالات سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ پاکستان ایران امریکہ جنگ رکوانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو آگاہ کیا، سفارتی محاذ پر قیام امن کے لیے متحرک ہیں۔ ایران اور خلیجی ملکوں کے رہنماؤں سے بات کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مفاہمت کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے فعال اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ۔ مٹی کا تیل $4.66 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت $433.40 فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ گزشتہ ہفتے مٹی کے تیل کی قیمت میں $70.73 فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت $321.17، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت $335.86 برقرار۔
सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान कहते हैं रवां हफ्ते के आखिर में वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। पहला मकसद जंग रोकना है। अब ऐसा लगता है बातचीत का मरहला आ गया है। जंग रोकने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के ज़रिए एक पैगाम दिया जा रहा है। अमरीकी हमारे साथ हम आहंगी रखते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम ईरानियों को भी आगाह कर रहे हैं। उम्मीद खोए बगैर अमन के लिए काम जारी रखेंगे। मौजूदा मुज़ाकराती पोजीशन जंग से पहले की पोजीशन से मुख्तलिफ है। अब जंग हकीकत में एक ख़ास मोड़ पर पहुँच चुकी है। मुज़ाकरात में मुतालबात यकीनन मुख्तलिफ होंगे। फ़रीक़ैन के लिए पैगाम है इब्तदाई पोजीशनों को ज़्यादा संजीदगी से ना लें। अमेरिका के ईरान से मुज़ाकरात पर वाशिंगटन का पहला बाज़ाबिता बयान सामने आ गया। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कहते हैं ईरानी हुकाम से मुलाकातें इस हफ्ते होंगी। अमेरिका के 15 निकात पर ईरान से जवाब की तवक्को रखते हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और नायब सदर जेडी वेंस के नाम सामने आ चुके हैं। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ अमरीकी टीम से मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में होंगे। अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज़बानी पर कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी समेत 4-5 का ग्रुप अपना मुँह नोच रहा है। हमें सालिसी पर ताने दे रहे हैं तो ये यूक्रेन में क्या कर रहे थे। भारत क्रेडिट ले रहा था लेकिन यूक्रेन जंग तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ईरान जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। ईरान से जंग तवील तनाज़ा नहीं बनेगी। ज़मीनी फ़ौज के बगैर ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ में टोल वसूली का ईरानी मनसूबा नाकाबिल कबूल है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान में मुलाकात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फ़रीक़ैन बहुत जल्द पाकिस्तान में मेज़ पर होंगे। मज़ीद कहा मालूमात के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबता हो चुका है। ईरानी फ़ज़ाइया का अमरीकी F-16 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी F-16 तैयारे ने सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग की। सैनकॉम का कहना है F-16 तैयारा जंगी परवाज़ के बाद मशरिक़ वस्ता में एक अड्डे पर उतरा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। हमले में ज़ख्मी 2 अमरीकी फ़ौजियों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है सऊदी फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी हमले में लड़ाका तैयारे को नुकसान पहुँचा। ईरानी मिसाइल ने जुमे को प्रिंस सुल्तान फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी हमले से कई अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे मुतासर हुए। ईरान के हमले में ड्रोन तैयारों को भी निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइली फ़ौज के लॉजिस्टिक और नकल हमल के मरकज़ पर बड़ा हमला। ड्रोन हमले में बिन गुरियान एयरपोर्ट पर इसराइली फ़ौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज ने इसराइली लॉजिस्टिक और नकल हमल के मरकज़ पर ड्रोन हमला किया। ईरान के ड्रोन हमले में इसराइली फ़ौज और एयरफोर्स की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, मिसाइलों पर शुक्रिया पाकिस्तान भी दर्ज था। ईरान की जानिब से पूरी दुनिया से हिमायत करने वाले मुल्कों से इजहार तशक्कुर के कलिमात दर्ज करके मिसाइल फायर किए गए। ईरानी मिसाइलों, ड्रोन्स और मल्टी वॉरहेड हथियारों ने कई शहरों में तबाही मचा दी। पासदारान इनकलाब का कहना है हमलों में दुश्मन के स्ट्रेटिजिक मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम का कहना है ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल का ईरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले। ज़िंजान में रिहायशी यूनिट पर ताज़ा हमले में 5 शहरी शहीद, 7 ज़ख्मी हुए। दारुल हुकूमत तेहरान और इस्फ़हान पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुतअद्दिद मकामात पर धमाके हुए। क़ुम पर हमले में 18 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ईरान का कुवैत की बंदरगाह पर हमला। ईंधन के ज़खायर में खौफनाक आग भड़क उठी। कुवैत पोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है मरकज़ी तिजारती बंदरगाह पर ड्रोन से हमला किया गया।
बंदरगाह की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब, बहरीन और कतर पर भी ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी अरब के मशरक़ी इलाके और रियाद पर भी हमले किए गए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है ईरान ने रियाद पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, 2 मिसाइलों को मार गिराया। 4 बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाकों या खलीजी पानियों पर गिरे। रियाद में 2 ईरानी ड्रोन को भी मार गिराया। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमलों के बाद सायरन बज उठे। पाकिस्तान की कुवैत पर हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद से राबता। कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत और कुवैती आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कुवैत के वली अहद ने ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारिजा से राबता। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। ईरानी जजीरे पर कब्जा या यूरेनियम ज़खायर को तहवील में लेने का मंसूबा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 10,000 ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में 5,000 मरीन्स, 82वें एयरबॉर्न डिवीज़न के 2,000 फ़ौजी मौजूद हैं। ईरानी जजीरे पर कब्जे की कोई भी कार्रवाई पेचीदा और ख़तरनाक होगी। PSL 11 में कराची किंग्स का फातिहाना आगाज़। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कोयटा की टीम 182 रन के ताक़ुब में 167 तक पहुंच सकी। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें उड़ाईं। सलमान आगा, एडम जैम्पा और मोइन अली की एक विकेट। शामिल हुसैन की निस्फ सेंचुरी रायगां गई। किंग्स ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 181 रन जोड़े। स्टार ऑलराउंडर मोइन अली के नाकाबिल शिकस्त 48 रन। कप्तान वार्नर ने 35 और नौजवान 7 बेग ने 30 रन स्कोर किए। ऑलराउंड कारकर्दगी पर मोइन अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कप्तान कराची किंग्स डेविड वार्नर ने कहा, हमारे स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की। एडम जैम्पा ने लगातार डॉट गेंदें करके दबाव बनाया। मैदान के अंदर भी कराची, मैदान के बाहर भी कराची। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर को पंजा लड़ाने में भी हरा दिया। मेगा इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। हसन अली ने ग्लैडिएटर्स के 14 तबाक रोशन कर दिए। तबाहकुन बॉलिंग से कोयटा की बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। कराची किंग्स के स्टार पेसर के पहले ओवर में 16 रन बने, लेकिन वो वापस आए और छा गए। अगले 3 ओवर में रॉयली रोसो और हसन नवाज समेत 4 बड़ी विकेटें उड़ाई। इनिंग्स के 19वें और अपने आखिरी ओवर में 3 बल्लेबाजों को डग आउट का रास्ता दिखाया। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने वज़ीर-ए-आज़म से शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर दी। सलमान इकबाल ने एक्स पर कहा, बानी टीम ओनर की हैसियत से PSL के आगाज़ से खाली स्टेडियम देखकर दिल दुखता है। PSL आवाम के जोश व जज्बे पर कायम है। उम्मीद है हम जल्द स्टेडियम्स को दोबारा भरपूर अंदाज में आबाद देखेंगे। PSL 11 के लिए PUBG मोबाइल और कराची किंग्स ऑफिशियल गेमिंग पार्टनर बन गए। लाहौर में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने शिरकत की। कराची किंग्स के प्लेयर हसन अली और खुमैजा बिन तनवीर भी मौजूद थे। उन्होंने इस शराकतदारी को दिलचस्प कदम करार दिया। कहा, इस पार्टनरशिप से शायकीन को क्रिकेट और गेमिंग का नया और पुरकशिश तजर्बा मिलेगा। ये शराकतदारी कराची किंग्स की डिजिटल मौजूदगी मजबूत बनाने के साथ साथ नौजवानों की शमूलियत यकीनी बनाएगी। सबसे ज्यादा क्रेडिट किसका है? हाँ, किसका है? वो कोयटा के जो बैट्समैन है ना, हसन हाँ। नवाज साहब, प्लेयर ऑफ द मैच उन्हें देना चाहिए। मैं तो समझ रहा था 16-17 में मैच खत्म हो Actually, हाँ जी 75 रन पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरी। वो अपनी गलतियों की वजह से मैच हारे हैं। क्रेडिट जाता है हसन अली को जिसने 4 विकेटें ली। हसन नवाज और रोसो की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स हारा। हम समझे थे कि कोयटा 17 ओवर्स में मैच खत्म कर देगा, मगर किंग्स ने बाजी पलट दी। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली ने कहा, कोयटा अपनी गलतियों की वजह से हारा है। नसीम शाह को ट्वीट पर जुर्माना होगा। कामरान अकमल का कहना था, हसन अली की शानदार बॉलिंग ने मैच का पांसा पलटा। पावर प्ले में 75 रन करने के बाद कोयटा की शिकस्त समझ से बाहर है। नसीम शाह के ट्वीट पर PCB को नोटिस लेना चाहिए। अदाकार समी खान बने मेहमान, किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना, खेला दिलचस्प खेल।
मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा गुलकार जवाद अहमद का और आदि के साथ मिलकर हाजरीन को खूब महसूस किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पीसीबी की फास्ट बॉलर को मुकर्ररा वक्त में नोटिस का जवाब देने की हिदायत। जवाब के बाद बोर्ड क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक फ़ैसला करेगा। नसीम शाह PSL के इफ्तिताही मैच में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्टेडियम आमद पर मुतनाज़े बयान दे चुके हैं। GSP प्लस पाकिस्तान एक्सपोर्ट की शहर सबसे पहले पाकिस्तान है और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें। GSP प्लस के हवाले से बयान आया है, मज़म्मत करते हैं। पहले हमारा मुल्क है और फिर इस रियासत और इस मैशत की सालमियत और इसकी मैशत। GSP प्लस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की शहरक है। सबसे पहले एक्सपोर्ट, बाकी चीज़ें बाद में हैं। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा GSP प्लस ख़त्म होने से मईशत को 8 से 9 अरब डॉलर सालाना नुकसान होगा। GSP प्लस ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद का कहना था GSP प्लस को किसी सूरत मुतासर नहीं होना चाहिए। GSP प्लस मिलने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी थी। SM तनवीर बोले GSP प्लस पाकिस्तान की मईशत की शहरक है। जो मईशत के खिलाफ बात करेगा हम उस पर बोलेंगे। FPCCI का स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत का ऐलान। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज ने कहा जंगी हालात में पाकिस्तान भी IPP से मुआहिदे मनसूख कर दे। मुआहिदे ख़त्म करने से ही बिजली की बचत का फ़ायदा होगा। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने कहा कराची में मार्केटें खोलने और बंद होने का कोई वक्त नहीं। हुकूमत कोई भी फैसला करने से पहले ताजिरों को एतमाद मिले। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज अर्थ आवर डे मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ 1 घंटे के लिए गैर ज़रूरी बिजली बंद करना नहीं, बल्कि तवानाई की बचत को रोज़मर्रा ज़िंदगी की आदत बनाने की तरगीब देना है। माहिरीन का कहना है अगर तवानाई के ज़िया में वाज़ेह कमी लाई जाए तो आइंदा 20 बरस में मौसमियाती आफात की कसरत और शिद्दत में बतदरीज कमी लाई जा सकती है। कराची डिफेंस फेज 6 में ख़याबान इत्तेहाद सिग्नल के करीब कार की रिक्शे को टक्कर, रिक्शा ड्राइवर जान बहाक, 2 अफराद ज़ख्मी। लाश और ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुदादाद कॉलोनी में चलती गाड़ी में आग लग गई। 3 बच्चियों और 4 ख़वातीन समेत एक ही ख़ानदान के 9 अफराद झुलस गए। झुलसने वाले तमाम अफराद सिविल हस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल। मुतासिरा ख़ानदान खुदादाद कॉलोनी का रिहायशी है। शादी की तकरीब से वापस घर जा रहा था। इब्तदाई तौर पर वाक़या शॉर्ट सर्किट मालूम होता है।